Very beautiful good morning to class 11 biology students. So in the previous video I have discussed about the morphology of the plant, and I told you that plants are made up of plants has two type of body parts, vegetative parts and reproductive parts. And I have started the vegetative parts about the morphology of the vegetative parts, and last time I have discussed about the roots and its modification. I hope you understand all these things. Today I am going to discuss the stem and the leaves with their modification, with their arrangement. So come with me. Now we are going to discuss the stem. Previously I have discussed the root, now I am going to discuss the stem. I told you that seed has two parts, plumule and radicle. Now the part which is developed from the plumule of embryo, that is known as shoot or stem. वो part plant का जो किससे develop होता है, plumule से develop होता है embryo के, that is known as stem or shoot. How you can determine that it is a stem? Then if you observe the stem, you can see these type of structure on the stem. These structures are known as nodes. In structure को क्या कहते हैं हम? Nodes. And the place between two nodes, this place is known as internode, which is the indicator that it is a stem. If you observe the stem, then in the immature stage, immature duration में the stem is green. स्टेम कैसी होती है? ग्रीन होती है. बट when it become mature, it becomes brown in color. But if we talk about the herbaceous and woody stems, then herbaceous stem always remain green. That's why they can also do the process of photosynthesis. But the woody stem, after the maturation, they change their color and they turns into brown color. The stem is responsible for the development of branches. On the branches leaves are formed, on the branches buds are formed, on the branches flowers are formed, and after fertilization flower also changes into fruit. So all these things are developed on the stem. ये सारी चीजें किस पर डेवलप होती हैं? स्टेम पर डेवलप होती हैं. ठीक है. तो अब हम बात करें अगर स्टेम क्या क्या फंक्शन करती है, तो सीधी बात है कि भाई फ्रेम दे रही है, मतलब प्लांट को क्या रख रही है? इरेक्ट रख रही है, बिल्कुल सीधा कर रही है. If it is green in color, it means if it has chlorophyll, then it can also do the process of photosynthesis. ये क्या कर सकती है? photosynthesis भी कर सकती है. इसके अलावा if the stem is green, it has stomata, and if a stem is brown, if a stem is woody, it has lenticels. So it can also do the function of exchange of gases. ये किसका काम भी कर सकती है? Gaseous exchange का. So these are the common functions of stem. Now I am going to discuss the modification of stem. It means how they can modify themselves and can conduct other function. दूसरे function भी वो कर सकती हैं. So the first modification is underground stem, and the example is most confusing example for the students. Most of the time that if we ask to the student what is potato, then they give the example it is a root, but actually it is not a root, it is a modified stem, which is also known as underground stem. It means stem modify itself and it goes to the downward direction. And why this modification is done? To store the food in the form of starch. food को store करने के लिए किस form में? starch की फॉर्म में. पोटैटो है, जिंजर है, जमीकंद है, अरबी, कोलोकेसिया जिसे कहते हैं, दे ऑल आर मॉडिफाइड स्टेम, दे ऑल आर अंडरग्राउंड स्टेम. ओके. नाउ द अनदर एग्जांपल इज बेटा एरियल स्टेम. ठीक है. एरियल स्टेम जो है दे आर मॉडिफाइड. एक्चुअली आप एरियल स्टेम को टेंड्रल्स भी बोल सकते हो, एंड दीज आर प्रेजेंट इन द पी प्लांट, दे आर प्रेजेंट इन द ग्रेप्स, ये सब में प्रेजेंट होती हैं, एंड दे आर मॉडिफाइड टू गिव द सपोर्ट. प्लांट को क्या करने के लिए हेल्प करती हैं? ये सपोर्ट देने के लिए, बिकॉज दे हैव वीक स्टेम्स. तो वहीं स्टेम से स्टेम मॉडिफाई होकर टेंड्रल्स बनाती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जो इन प्लांट को क्या देती हैं? सपोर्ट देती हैं. इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं. सम एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम, कुछ एक्सिलरी बर्ड्स जो प्रेजेंट होती हैं स्टेम पर, वो मॉडिफाई होकर बेटा क्या बना देती हैं? वो मॉडिफाई होकर कभी कभी थॉर्न्स या फिर स्पाइंस बना देती हैं. ठीक है. अब इनका क्या फ़ायदा होता है प्लांट्स और एनिमल्स को? तो इफ़ द थॉर्न्स एंड स्पाइंस आर प्रेजेंट, देन दे कैन प्रिवेंट देमसेल्फ बाय द ब्राउजिंग एनिमल्स. जो खाने आते हैं, जो चरने आते हैं एनिमल्स, उनसे बचाते हैं, क्योंकि अगर थॉर्न्स होंगे, स्पाइंस होंगे, तो वो उनको एनिमल्स उन प्लांट्स को नहीं खाएंगे. तो एक तरह से इनको क्या देते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं. इसी तरह से अगर मैं बात करूँ फ्लैट स्टेम्स की, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टेम फ्लैट हो जाती हैं, एंड द एग्जाम्पल इज ओपनशिया.
ओपनशिया में होता है, बोगनविलिया में होता है, ठीक है, ये भी फ्लैट हो जाती हैं। और फ्लैट होकर एक तो ये ट्रांसपिरेशन के रेट को कम कर देती हैं, दूसरा इन पर स्पाइंस भी प्रेजेंट होते हैं, तो साथ साथ में ये भी क्या करती हैं, सेम फंक्शन करती हैं, बचाती हैं ब्राउजिंग एनिमल से। और अगर ग्रीन है, ये नॉर्मल सी बात है, ओपनशिया में अगर देखोगे स्टेम फ्लैट होती है, साथ साथ में ग्रीन होती हैं, तो क्या काम भी करती हैं, ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी करती हैं, ठीक है। अब आती है मेन चीज़ पर, ज़्यादातर जो स्टेम्स होती हैं वो मॉडिफाई होकर क्या किसका काम करती हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का। रनर है ना, इस तरह की बहुत सारे एग्जांपल है, ग्रासेस में रनर्स होती हैं, है ना, स्टोलोन्स होते हैं, दे और आर मॉडिफाइड स्टेम्स। आप देखोगे ग्रास है, स्ट्रॉबेरी है, मिंट है, जास्मिन, आपने लेयरिंग पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, इन सब में स्टेम यूज होती है किसकी तरह, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह। तो इट हेल्प टू डेवलप अ न्यू प्लांट, इट मीन्स स्टेम को यूज करके आप एक नया प्लांट बना सकते हो। इट मीन्स यू कैन यूज द स्टेम एज अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। सो दिस इज द स्टेम एंड इट्स मॉडिफिकेशन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लीव्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस द leaf. Okay, this is the structure of leaf. From the node portion of stem द लीफ अराइजेज, जो स्टेम का नोड पोर्शन होता है वहां से क्या निकलती है, लीफ निकलती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट। इट मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव द फूड टू द प्लांट। इट इज द किचन, अगर आप कहें तो क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं हम, किचन ऑफ द सेल ना। तो एक्चुअली दिस क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द अबंडेंट क्वांटिटी इन द लीफ विच आर रिस्पॉन्सिबल टू डू द फोटोसिंथेसिस, टू कंडक्ट द प्रोसेस ऑफ फूड formation. If you observe the structure of leaf, then you can see that leaf has a large surface area. एक पूरा surface area होता है. This large surface of the leaf is known as leaf lamina, surface or leaf blade. This leaf is situated on a stem portion. On that portion is known as leaf base. From the leaf base, a stalk arises on which this leaf is attached. This portion is known as petiole. In some leaf, petiole is present. In some leaf, petiole is not present. ठीक है. In some leaves, some small leaf-like structure are also arise from the base of the leaf. These are known stipule. These are known as stipule. Actually, in some plants, if stipule is present, these are known as stipulate leaves. In some leaves, those who have not stipule, जिनमें stipule present नहीं होता, these are known as ex-stipulate. At the side of the leaf, a bud is present, that is known as axillary bud, which is responsible to make the new branch on which new leaves arise, fruit, flowers, all these things arise. If you observe the surface of leaf lamina, a structure is present. एक लीनियर स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है. दिस इज नोन एज द मिड रिब एंड फ्रॉम द इट इज ऑल्सो नोन एज द मिड वीन एंड फ्रॉम दिस मिड वीन सो मैनी ब्रांचेस अराइजेज. दीज आर नोन एज द वीन लेट्स. इन दीज veins and mid veins the vascular tissues are present, xylem and phloem are present, which are responsible to conduct the process of transportation. So this is the structure of leaf and the main function of leaf to conduct the photosynthesis. क्या काम करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं ये, ठीक है. इफ वी टॉक अबाउट द टाइप ऑफ लीव्स, अगर मैं टाइप ऑफ लीव्स की बात करूं तो बेटा टाइप ऑफ लीव्स में हम दो चीज़ें यहाँ पर लेते हैं, दो टाइप्स लेते हैं, सिंपल और कंपाउंड. कंपाउंड में भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड, ठीक है. सिंपल, इफ द लीफ इज कंप्लीट, देयर इज नो इंसीजन, कोई भी कटिंग नहीं है लीफ में, लीफ पूरी है, उसकी मिडवीन पूरी है, दैट इज नोन एज सिंपल लीफ. और इफ द इंसीजन इज ओनली फ्रॉम द ऑन द लीफ ब्लेड, और अगर इंसीजन कोई कटिंग है भी तो वो लीफ ब्लेड पर है, वो इंसीजन अंदर तक मिड रिब तक नहीं आ रहा है, वो कटिंग मिड रिब तक नहीं आ रही है, देन दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड द सिंपल लीफ. But if this incision, if this cutting comes up to the midrib, अगर ये midrib तक आ जाए, then leaf divided into so many small leaves, तो जो leaf है वो छोटी छोटी बहुत सारी leaves में divide हो जाती है, and these are known as leaflets. इन छोटी छोटी leaves को क्या कहते हैं हम, leaflets बोलते हैं. So this type of leaf is known as compound and it is divided into small leaves. That's why it is known as pinnately compound leaf. अगर आप देखोगे नीम में, अजा रिडक्टा इंडिका में आपको उसी तरह का अरेंजमेंट लीफ का दिखाई देगा. And if the from the same petiole, if a bunch of leaflets arises, एक पूरा bunch निकले leaflets का, which seems like our palm, जो कैसा लगे, हमारे पाम जैसा लगे, एक ही उसकी मिडवीन है
है ना, इट सीम्स लाइक अ पाम स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पामेटली कंपाउंड लीफ। यहाँ भी एक ही मिडरिप से ही कटकर ये सारी लीफ जो है वो बनती हैं। अगर आप देखोगे जो अंडी होता है, जो अंडी का तेल यूज़ किया जाता है कोल्ड एंड कफ से बचने के लिए, उसकी लीफ जो होती हैं वो उसी तरह की पामेटली कंपाउंड लीफ होती हैं। तो अगर इंसीजन केवल मार्जिन पर है या फिर है नहीं तो वो सिंपल है, और इंसीजन अगर अंदर तक आ जाता है जिससे मिडवीन भी डिवाइडेड हो जाती है, दैट इज नोन एज कंपाउंड लीफ। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द वेनेशन। सिंपल सा है बहुत डेफिनेशन, अरेंजमेंट ऑफ वीन ऑन लेमिना, ऑन लीफ लेमिना, इट इज नोन एज वेनेशन। जिस तरह से लीफ अरेंज्ड है लीफ लेमिना पर, उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, वेनेशन। टू टाइप ऑफ वेनेशन इज देयर, रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। इफ द लीफ इज लाइक दैट, सिंपल लीफ है या कैसी भी लीफ है, और अगर उसमें मिड विन से ही बहुत सारी वीनलेट्स निकल रही हैं जो कैसा बनाती हैं, जाल जैसी स्ट्रक्चर बनाती हैं, देन दिस इज नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन। मिड वीन से भी वीनलेट्स निकल रही हैं, वीनलेट से भी ब्रांचेस मिल रही हैं, और वो पूरी सरफेस पर एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बना लेती हैं। दिस इज नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन एंड दिस इज फाउंड इन डाइकॉट्स। किसमें मिलता है, डाइकॉट्स में। और इफ द लीफ सरफेस हैज नो डिविजन्स ऑफ वीन्स, वीन्स आर अरेंज्ड इन अ पैरेलल मैनर, जो वीन्स हैं वो एक के ऊपर एक के बाद एक पैरेलली अरेंज हैं, दिस इज नोन एज पैरेलल वेनेशन एंड इट इज फाउंड इन मोनोकॉट्स। इफ यू ऑब्जर्व द लीफ ऑफ wheat, maize, rice, then you can see this type of structure on the leaf, this is known as parallel venation। क्या बोलते हैं इसको, parallel venation। now I am going to discuss the next topic, that is phyllotaxy। वर्ड से ही समझना बेटा, टैक्सी मतलब टैक्सोनॉमी से है, अरेंजमेंट, ठीक है। फिल्लो मतलब लीव्स, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, इट इज नोन एज फिल्लोटैक्सी। जिस तरीके से लीव्स स्टेम पर लगी होती हैं उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम, फिल्लोटैक्सी। अब 3 तरह का मैं आपको बताती हूँ बेटा। Three type of phyllotaxy is there. First is opposite, second is alternate, and the third is world। Opposite, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल टर्म है बेटा। If two leaves are present on the same node in different directions या फिर in opposite direction, it is known as opposite phyllotaxy। अगर एक नोड पर 2 लीफ प्रेजेंट हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज नोन एज अपोजिट फिल्लोटैक्सी एंड द एग्जांपल इज गुड़हल, चाइना रोज। सेकंड टाइप इज ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। इफ only one leaf is present on one node, it means leaf are arranged alternately। पहले एक नोड पर एक साइड होगी, दूसरी नोड पर दूसरी साइड होगी। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज ऑल्टरनेट टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फिल्लोटैक्सी। इट इज फाउंड इन अकाउआ, आपने सुना होगा आग का नाम जिसमें से मिल्की लैटेक्स निकलता है, दैट इज कैलोट्रोपिस। एंड द थर्ड टाइप ऑफ, इफ ऑन वन नोड मोर देन 2 लीव्स आर प्रेजेंट, एक नोड पर 2 से ज्यादा लीव्स प्रेजेंट है और एक तरह का गुच्छा बना रही हैं, वर्ल्ड बना रही हैं, दिस इज नोन एज वर्ल्ड फिल्लोटैक्सी एंड इट इज फाउंड इन रोज। किसमें मिलता है, रोज में मिलता है, एल्स्टोनिया में मिलता है। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, लीव्स का अरेंजमेंट स्टेम पर। Now I am going to discuss the modification of, now the next topic is modification of leaves। The first modification is fleshy leaves which are found in onion and garlic। आपने देखा होगा अनियन में कितनी सारी एक के बाद एक परत निकल के आती है। दे ऑल आर fleshy leaves and they modified together, they modify themselves to store the फूड। किस लिए मॉडिफाई होती है, फूड को स्टोर करने के लिए। एनदर इज टेंड्रिल्स, ये तो बहुत सुना होगा आपने, पोथोस में भी होता है, मनी प्लांट जो होता है, पी में भी होता है। यहाँ पर लीव्स में से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिनको टेंड्रिल्स कहते हैं। वो क्या देती हैं, सपोर्ट देती हैं। क्लिम्बर वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें टेंड्रिल्स ही करती है काम।
Next example is sometimes the leaves have spines. They modify to form the spines like in cactus, like in Aponcia, and they give the protection. They are responsible for the defense of these plants. ये उन plants को browsing animals से बचाती हैं. Some leaves are known as पल्विनेट लीव्स. कुछ लीव्स को क्या कहते हैं हम? पल्विनेट्स. लाइक इन अकेशिया, बबूल में होती है इस तरह की लीव्स जहाँ पर पिट्यूल स्वेलन हो जाता है. आपने मिमोसा प्यूडिका भी पढ़ा होगा, है ना. यहाँ पर जो ये पल्विनस है वो ग्रीन हो जाता है, और ग्रीन होने के बाद में पल्विनस भी किसका काम करता है? फोटोसिंथेसिस का. लीव्स के साथ साथ फोटोसिंथेसिस पल्विनस में भी होता है. एंड द लास्ट इज इंसेक्टिवोरस लीव्स. These are found in the pitcher plant. आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े होंगे 10th में. आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल, पिक्चर प्लांट. मैं इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ आपको आज. ये मॉडिफाई क्यों होते हैं? यूज टू कैप्चर द फूड. अब ये करते क्यों हैं? ये क्यों कैप्चर करते हैं इंसेक्ट को? ये बात हम बताते हैं आपको. Actually, these plants are present in those areas which have the deficiency of nitrogen in the soil, जहाँ पर नाइट्रोजन की deficiency होती है. And we know that nitrogen is the important constituent for the amino acid, and amino acid changes into protein, which is known as the body building component. If the nitrogen is not present, then how they make their body high, how they can grow? So they have the some capturing organs, capturing leaves in their body. जैसे घड़े जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसके ऊपर इस तरह का पिक्चर जैसा कैप लगा होता है. When the insect come in contact, जब इस इंसेक्ट इनके पास आता है, they capture the insect and close the pitcher cap. पिक्चर का कैप बंद कर लेते हैं. And they have some enzymes by which they dissolve the body of insect. And as we know, the body of insect is made up of chitin, and in the chitin nitrogen is present. So they dissolve the body and use the nitrogen of the insect body for their पर्पस. अपने लिए ये नाइट्रोजन की जो इंसेक्ट की जो बॉडी से जो नाइट्रोजन निकलता है वो उसको यूज करती हैं. सो दे आर नॉट हेट्रोट्रॉप्स, दे आर पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स. दे कैन डू फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देयर बॉडी, बट देयर नाइट्रोजन डिमांड इज नॉट कंप्लीटिंग. दैट्स व्हाई दे आर कैप्चरिंग द इंसेक्ट एंड कन्वर्ट देयर बॉडी इनटू द टेक द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ देयर बॉडी एंड यूज देम फॉर देयर पर्पस. So now we have completed the leaf. Now next time I am going to start the flower. Okay, till then, goodbye, have a beautiful day.